جب بغداد کے بازاروں میں زندگی ہر روز ایک نیا رنگ بدلتی تھی، جہاں گلیوں میں خچر اور اونٹ چلا کرتے تھے، جہاں بازاروں میں خوشبوؤں اور مصالحوں کی مہک ہوا میں رچی رہتی تھی، اور جہاں ہر پیشے والا اپنی محنت سے رزق کماتا تھا، انہی بازاروں میں ایک دھوبی بھی رہتا تھا۔ نام تھا اس کا صابر۔ دھوبی تو تھا مگر دل کا بہت ہوشیار اور دماغ کا نہایت چالاک۔ اس کے ہاتھ میں صفائی کا ہنر تھا اور زبان میں نمکین عقل۔ وہ ہر روز صبح سویرے کپڑوں کی گٹھری اپنے کندھے پر رکھتا، دریا کے کنارے جاتا اور بڑی مہارت سے دھلائی کرتا۔ لیکن اس کی شہرت صرف کپڑے دھونے کی نہ تھی، بلکہ اس کی دانائی، باتوں کی پھرتی اور لوگوں کی چالاکیوں کو سمجھنے کی قوت نے اسے گلی گلی مشہور کر دیا تھا۔ صابر کے پاس ہر کوئی آتا، کوئی امیر، کوئی فقیر، کوئی قاضی، کوئی سوداگر، سب اپنے کپڑے دھلوتی اور ساتھ ساتھ اپنے دل کا حال بھی سناتے۔ اور صابر وہ ہر بات سن کر بس مسکرا دیتا اور موقع پر ایک ایسا فقرہ چست کرتا کہ سننے والا سوچ میں پڑ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے، شہر کے مشہور سوداگر کے ہاں سے ایک خادمہ آئی۔ چادر میں لپٹے ہوئے کچھ قیمتی ریشمی لباس تھے۔ خادمہ نے سختی سے کہا، یہ کپڑے خاص ہیں، خلیفہ کی دعوت میں پہننے ہیں، اگر ذرا سا داغ بھی لگا تو سوداگری کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ صابر نے مسکرا کر گٹھری لی اور کہا، امید کیجئے گا کہ ان کپڑوں کا غرور بھی میں دھو دوں گا۔ خادمہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی لیکن کچھ بولی نہیں۔ صابر نے گٹھری الفاٹیائی اور دریا کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کی نظر اس موچی پر پڑی جو کئی دن سے اس سے ادھار مانگ رہا تھا۔ موچی نے آج بھی روکا، صابر بھائی، جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا مجھے بھی دے دو، میری بیٹی کی شادی ہے۔ صابر نے اس بار انکار نہ کیا۔ اس نے کپڑوں میں سے ایک لباس نکالا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ موچی نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ یہ تو بہت قیمتی ہے، صابر نے کہا، اس لباس کا اصل مول تیرے سچ میں ہے، جا بیٹی کا جہیز مکمل کر۔ لیکن اسے کیا خبر تھی، یہ نیکی اب اس کے لیے آزمائش بننے والی ہے، کیونکہ اگلی صبح شہر بھر میں اعلان ہوا کہ سوداگر کے خلیفہ کے کپڑے گم ہو گئے ہیں اور دھوبی مجرم ہے۔ صبح ابھی پوری طرح روشن نہ ہوئی تھی مگر شہر کی فضا میں ایک بے چینی سی پھیل چکی تھی۔ بازار کھلنے سے پہلے ہی لوگ گھروں سے نکلنے لگے تھے۔ گلی گلی ایک ہی خبر گونج رہی تھی، سوداگر کے کپڑے غائب ہو گئے، اور الزام سیدھا صابر دھوبی پر لگا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کو دکھ، کچھ کو یقین، اور بہت سو کو خوشی کہ آخر وہ دھوبی بھی پکڑا گیا جس کی زبان سب سے تیز تھی۔ صابر اس وقت دریا کے کنارے بیٹھا کپڑے دھو رہا تھا جب دو سپاہی اس کے پاس آئے۔ چہرے پر سختی، لہجے میں حکم، صابر بن خلیل، تا بادشاہی قافلے کے کپڑوں کا چور ہے، چل ہمارے ساتھ۔ صابر نے پانی سے ہاتھ نکالے، تولیا جھاڑا اور بغیر کوئی مزاحمت کیے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بازار سے گزرتے ہوئے ہر نظر اس پر جمی ہوئی تھی، کسی کے چہرے پر افسوس، کسی کے ہونٹوں پر ہنسی، لیکن صابر وہ بدستور خاموش تھا، نہ چہرے پر شرمندگی، نہ خوف، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ یہ وقت بھی آنا تھا۔ سپاہیوں نے اسے قاضی کی عدالت میں پیش کیا۔ قاضی کے سامنے سوداگر کھڑا تھا، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں حق کا شعلہ۔ قاضی صاحب، یہ وہی دھوبی ہے جسے میرے کپڑے دیے گئے تھے، میرے غلام نے خود اس کے حوالے کیے، اور اگلی صبح جب کپڑے درکار تھے یہ غائب تھا، اور کپڑے بھی۔ قاضی نے صابر کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ صابر نے پہلی بار زبان کھولی، لیکن آواز میں گھبراہٹ نہیں بلکہ گہری سنجیدگی تھی۔ قاضی صاحب، اگر میں نے کپڑے چرائے ہوتے تو کیا خود کو دریا کنارے کپڑے دھوتے چھوڑتا؟ میں بھاگتا، چھپ جاتا، لیکن میں وہیں تھا، وہیں جہاں ہر روز ہوتا ہوں۔ قاضی نے غور سے اسے دیکھا، پھر سوداگر سے کہا، کیا کوئی گواہ ہے تمہاری الزام کا؟ سوداگر جھجکا، پھر بولا، نہیں، مگر صرف یہی دھوبی کپڑے دھونے لے گیا تھا، اب وہی غائب ہیں۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا، دھوبی کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ اگلے ہی پہر صابر کے جھونپڑی نما گھر کی دیواریں الٹ دی گئیں، برتن،
चादर, बोरी सब खंगाल ली गई, मगर कीमती कपड़ों का कोई निशान न मिला। सिपाही खाली हाथ वापस लौटे। काजी ने कहा, जब तक कोई सबूत न हो हम किसी को चोर नहीं कह सकते। धोबी को रहा किया जाता है। साबिर ने काजी का शुक्रिया अदा किया और बाहर निकला, लेकिन बाहर वो मोची खड़ा था जिसको उसने वो रेशमी लिबास दिया था। मोची की नजरें नीची थीं, चेहरे पर खौफ छाया हुआ था। साबिर उसके पास गया, नरमी से बोला, अगर तो चाहे तो कपड़ा वापस कर दे, मेरी आजमाइश खत्म हो जाएगी। मोची के आंसू निकल आए। मैंने बेटी का जहेज इसी से मुकम्मल किया है, अगर वापस करूं तो शादी टूट जाएगी। साबिर ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, अल्लाह के बंदे, जिस चीज में झूठ हो वो देर पा नहीं होता। तेरा दिल सच जानता है, मेरा रब भी। मोची ने वो कपड़ा एक पुराने कपड़े में लपेटकर साबिर को वापस दे दिया। साबिर उसी वक्त वापस काजी के पास गया, कपड़ा पेश किया और सारा वाकया बयान कर दिया। ना किसी को जलील किया, ना नाम लिया, बस सच कह दिया। काजी ने खामोशी से साबिर को देखा, फिर ऐलान किया, ये धोबी चोर नहीं बल्कि वो सच बोलने वाला है जो अपनी नेकी भी छुपा लेता है। वक्त गुजरता गया, मगर साबिर धोबी की सच्चाई और समझदारी की गूंज पूरे बगदाद में फैल गए। बाजार के कोने से लेकर खलीफा के महल तक लोग अब इसका नाम इज्जत से लेते थे। जहां पहले लोग इसे सिर्फ कपड़े धोने वाला समझते थे, अब वहां इसे एक दाना इंसान, एक नर्म दिल और इंसाफ पसंद शख्स के तौर पर जाना जाने लगा। यही वजह थी कि एक दिन बगदाद के बड़े काजी ने खुद उसे बिला भेजा। पैगाम मिला, काजी साहब चाहते हैं कि तुम उनके घर आकर कुछ दिन काम करो और उनके मखसूस मेहमानों के लिबास धोने की जिम्मेदारी संभालो। साबिर ने इस पैगाम पर मुस्कुरा कर सर झुका दिया। वो जानता था कि असल इज्जत सिर्फ जबान से नहीं बल्कि किरदार से मिलती है। चंद दिन बाद साबिर काजी के घर पहुंचा। एक बड़ा सा आंगन, सफेद पत्थरों का फर्श और दरमियान में खजूर का दरख्त जिसके नीचे काजी की कुर्सी थी। काजी ने साबिर को बैठने का इशारा किया और कहा, साबिर, मैं तुम्हें सिर्फ धोबी नहीं समझता, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर के खादमाना मामलात की निगरानी करो। तुम्हारी अक्ल, तुम्हारा सच और तुम्हारी खामोश नेकी मेरे दिल को लगी है। साबिर ने कुछ देर सोचा, फिर अदब से कहा, काजी साहब, मैं एक धोबी हूँ, मेरी औकात यही है और मेरा फख्र भी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और नेकी के कामों में शरीक हूँ तो मैं इनकार नहीं करूँगा। काजी मुस्कुराया और उसे एक खुफिया जिम्मेदारी दी। बगदाद में एक खजांची है जो हर साल बैत अलमाल से गरीबों के लिए कपड़े तकसीम करता है, लेकिन पिछले 2 सालों से शिकायत आ रही है कि वो पुराने, गंदे और बेकार कपड़े देकर माल खुद रख लेता है। मैं चाहता हूं कि तुम खुफिया तौर पर उसकी निगरानी करो और फिर फैसला सिर्फ जबान से नहीं, सबूत के साथ दो। ये एक नया इम्तिहान था। साबिर ने खामोशी से हामी भरी। अब वो सिर्फ कपड़े धोने वाला नहीं रहा बल्कि सच की खुशबू को तलाश करने वाला बन चुका था। अगले दिन वो इसी खजांची के पास गया, एक आम धोबी की हैसियत से। साफ लिबास, खाकी चादर और मामूली बातचीत। खजांची ने जब उसे देखा तो हंसा, कपड़े धोने आया है या जासूसी करने? साबिर ने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ वही देखता हूँ जो बाकी नहीं देखते, और अगर कहीं मील है तो पानी ले आता हूँ। ये सुनकर खजांची चौंका, मगर अगले लम्हे फिर मुस्कुराया। शायद वो नहीं जानता था कि जिस पानी से साबिर कपड़े धोता है वो मील के साथ झूठ भी बहा ले जाता है। चंद दिन बाद साबिर ने सच्चाई जमा कर ली। घटिया कपड़ों की बोरियां, नकली दस्तखत शुदा रसीदें और कई खामोश मजदूरों की गवाहियां, वो सब कुछ लेकर काजी के सामने पेश हुआ और कहा, झूठ जितना भी सफेद हो, जब पानी गिरता है असल रंग निकल ही आता है। काजी ने खजांची को बुलाया और साबिर के सामने तमाम सबूत रख दिए। खजांची की जबान बंद, आंखें नीची और पसीना माथे पर। हुक्म हुआ, माल वापस बैत अलमाल में जमा करो और अवाम से मुआफी मांगो, और ये काम साबिर की निगरानी में होगा। लोगों ने जब ये सुना, बाजार के हर कोने से साबिर के लिए दुआएं उठने लगे।
बच्चे इसको देखकर मुस्कुराते, बूढ़े उसकी अक्ल पर फख्र करते और औरतें इसके लिए चुपके चुपके दुआएं करते। अब वो सिर्फ चालाक धोबी ना रहा, बल्कि बगदाद की अमानत कहलाने लगा। वक्त गुजरता रहा और साबिर की नेकी, सच्चाई और होशियारी के चर्चे अब सिर्फ आम लोगों में ना रहे, बल्कि वो बगदाद के रईसों, काजियों और उलमा की महफिलों में भी होने लगे। मगर जितना बड़ा नाम बनता है, इतनी ही बड़ी आजमाइश इसका रास्ता रोकने आती है। और साबिर के लिए वो आजमाइश अब आने वाली थी, ऐसी आजमाइश जिसमें ना कपड़ा था, ना पानी, बल्कि दिल, नियत और जबान का वजन तोलना था। एक दिन जब साबिर दरिया किनारे कपड़े धो रहा था, एक सादा पोश बूढ़ा शख्स उसके पास आया। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सर पर मिटियला इमामा और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने नरमी से कहा, क्या तुम वही साबिर हो जिसे लोग बगदाद का चालाक धोबी कहते हैं? साबिर ने सर झुकाकर कहा, लोग जो कहें वो उनका हक है, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। बूढ़ा मुस्करा दिया, फिर आहिस्ता से कहा, तो फिर आज एक ऐसा काम करो जिसका बदला तुम्हें शायद यहाँ ना मिले, मगर वहाँ जरूर मिलेगा जहाँ इंसाफ अटल है। साबिर चौंक गया। बूढ़े ने एक कपड़े की पोटली निकाली, इसमें कुछ सोने के सके और एक पर्ची थी। ये 5 दीनार और ये एक कागज। कल सुबह बगदाद के जुनूबी कब्रिस्तान में एक फकीर दफनाया जाएगा। उसका कोई वारिस नहीं, ना कफन ना दफन। ये काम तुम्हें करना है, ना किसी को बताना, ना नाम लेना, बस ये काम मुकम्मल कर देना। साबिर ने बूढ़े की तरफ देखा। कुछ कहने ही वाला था कि वो गायब हो चुका था, जैसे जमीन निगल गई हो। दाएं बाएं देखा, कहीं कोई निशान न था। साबिर ने पर्ची खोली, इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, वो अल्लाह के लिए, इसे इज्जत से दफन करना। अगली सुबह साबिर वही किया। उसने नया सफेद कपड़ा खरीदा, 2 मजदूरों को साथ लिया और कब्रिस्तान पहुंचा। वहां वाकई एक लाश पड़ी थी जिसे कोई उठाने वाला न था। साबिर ने खामोशी से कफन पहनाया, खुद कब्र खोदी और उसे दफनाया। जब सब काम मुकम्मल हो गए तो मजदूरों ने पूछा, बाबा ये कौन था? साबिर ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का बंदा। इसी रात जब वो वापस आया तो घर के दरवाजे पर वही पुराना मोची बैठा था, चेहरे पर घबराहट, हाथ में कपड़ों की गठरी। साबिर भाई, मेरी बेटी का शौहर कुछ दिन पहले शहर से गया, वापस नहीं आया। कल एक लाश कब्रिस्तान में दफनाई गई है। मैं डर रहा हूं कहीं वही ना हो। साबिर का दिल धड़कने लगा। इसका कोई निशान, कोई लिबास। मोची ने कपड़ों की गठरी खोली, एक पुराना रुमाल निकाला। साबिर ने चौंक कर वही पर्ची निकाली जो कल इसे बूढ़े ने दी थी। लिखाई वही थी। अब साबिर समझ चुका था, वो बूढ़ा कोई आम शख्स ना था, बल्कि शायद अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता था। फिर वही शख्स जिसे दफन किया गया, इसका ख्वाब बनकर आया था। साबिर ने आसमान की तरफ देखा, दिल में लर्जा था लेकिन आंखों में सुकून। जो नेकी छप कर की जाए, अल्लाह इसे कभी जाया नहीं करता। और उसी दिन से साबिर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ नहीं, दुआओं की बारिश होने लगी। साबिर की जिंदगी अब पहले जैसी ना रही थी। इससे ना शोहरत की परवाह थी, ना माल की, ना ज़बानों के तारीफों की गूंज से कोई खुशी होती थी। बस एक अंदरूनी खामोशी, एक सुकून सा दिल में उतरा हुआ था। जो लोग कभी उसे आम धोबी कहते थे, अब इससे दुआ की दरखास्त करते, मशवरे लेते और अपने दिलों के राज भी सुनाते। लेकिन फिर एक दिन बगदाद में एक नया फितना पैदा हुआ। खलीफा के महल से एक नायाब चादर गायब हो गई। ये वो चादर थी जो खास मौके पर खलीफा खुद ओढ़ता था और उसकी धुलाई सिर्फ शहर के मोतबर तरीन धोबी को सौंपी जाती थी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ, वो चादर धोने के लिए साबिर के हवाले की गई थी। महल के खास खादिम ने इसे चादर दी और ताकीद की, ये चादर अमानत है, इसका एक धागा भी जाय हुआ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। साबिर ने चादर को दोनों हाथों से थामा। इसे पानी में डालने से पहले इसने साफ चादर को देखा,
और दिल में अल्लाह का नाम लिया। अगले दिन जब चादर वापस महल पहुंची तो वो चादर ना थी। या तो बदली गई थी या कोई और ले गया था। महल में कोहराम मच गया। हर नौकर, हर खादिम, हर खुफिया मुहाफिज की तफ्तीश हुई, मगर नजर साबिर पर पड़ी। चादर तमेरी पास गई थी और वापसी पर जाली निकली। अब बताओ चोरी कहाँ की? साबिर को महल के मुहाफिजों ने फौरन कैद कर दिया। न कोई मुकदमा, न कोई सुनवाई, बस हुक्म मिला सुबह सादिक के वक्त सजा दी जाएगी। रात का वक्त था। साबिर एक ठंडी काल कोठरी में बंद था। न जमीन नरम थी, न छत महफूज, बस अंधेरा, तन्हाई और खामोशी। लेकिन साबिर के दिल में अब भी सुकून था। उसने अपनी चादर को सर के नीचे रखा और आंखें बंद करके रब से बात करने लगा। ए मेरे रब, मैंने तेरी रजा के लिए सच बोला, नेकी की। अगर ये मेरी आखिरी रात है तो मेरी जबान पर सिर्फ तेरा नाम हो। इसी रात महल के पहरेदारों को किसी ने इत्तला दी के दरवाजे के बाहर एक बोरी पड़ी है। जब वो बोरी खोली गई तो इसमें वही असल चादर निकली, सलीके से तहशदा, और साथ एक पर्ची। गलती इंसान की थी, लेकिन जिसको इल्जाम मिला वो फरिश्ता था। वो पूरा महल चौंक गया। फौरन खलीफा को इत्तला दी गई। खलीफा ने हुक्म दिया इस धोबी को इज्जत के साथ महल में बुलाया जाए और वही अब से हमारे महल के तमाम कपड़ों का जिम्मेदार होगा। जब साबिर को कोठरी से निकाला गया तो चेहरे पर ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस वही खामोशी और आंखों में वही इत्मीनान। खलीफा ने खुद इससे माजरत की और पूछा, जब तुझ पर झूठा इल्जाम लगा तो खौफ क्यों ना आया? साबिर ने एक जुमले में सब जवाब दिया, जिसमें दिल का लिबास साफ रखा हो, इसे कपड़ों की चोरी का खौफ नहीं होता। ये बात खलीफा के दिल में जा लगी। इसी दिन से साबिर सिर्फ बगदाद का धोबी ना रहा, बल्कि वो खलीफा का अमीन कहलाया। और ये वो मकाम था जो ना दौलत से मिला, ना सिफारिश से, बल्कि सिर्फ सच्चाई और नरमी से। बगदाद की फिजा में अब वही नाम गूंजता था, साबिर। बाजार में बच्चे इसकी झोंपड़ी के बाहर जमा होकर उसकी दुआएं लेते, बूढ़े उसकी बातों में अक्ल तलाश करते और नौजवान इससे सीखने की तमन्ना रखते। साबिर अब खलीफा के महल में रहता था, मगर उसने अपना पुराना झोंपड़ा न छोड़ा। वो रोज सुबह महल जाता, काम करता और शाम को अपनी बोरी, चादर और सादा बर्तनों के साथ अपने इसी पुराने दरख्त के साए में लूट आता। लेकिन एक दिन महल के खजांची ने एक अजीब बात कही। साबिर, तुम तो महल में इतने करीबी हो, चाहो तो खलीफा से कुछ मांग लो। जमीन, सोना, नौकरी, महल, जो चाहो। साबिर मुस्कुराया और बस इतना बोला, जिसने अपनी नियत में खोट ना रखा हो, इसे दानिया के खजानों की तलब नहीं होती। खजांची ने इसकी बात सुनी और हैरत से सर हिला दिया। लेकिन जिस दिन साबिर की जबान से ये जुमला निकला, उसी रात खलीफा को एक ख्वाब आया। खलीफा ने देखा कि एक बहुत बड़ा तराजू है, जिसके एक पल्ले में सोने के ढेर और दूसरे पल्ले में एक बोसीदा चादर रखी है, मगर चादर वाला पल्ला भारी है। खलीफा हड़बड़ा कर उठा और फौरन साबिर को बिला भेजा। मैंने रात अजीब ख्वाब देखा और मेरा दिल गवाही देता है कि वो चादर तुम्हारी ही थी। इस साबिर ने संजीदगी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, वो चादर नहीं, एक नियत जो मैंने रब के सामने लपेटी थी, और नियत का वजन कभी हल्का नहीं होता। ये बात खलीफा के दिल पर नक्श हो गई। उसने फौरन ऐलान किया, साबिर बिन खलील को बगदाद का अवामी काजी मुकर्रर किया जाता है। जो बात कहेगा अदल के तराजू में तोल कर कहेगा, और उसकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नाफिज ना होगा। पूरे बगदाद में यह खबर फैल गई। लोगों ने गुलाब की पत्तियां निछावर की और दरिया किनारे जिस पत्थर पर साबिर बैठा करता था, वहां एक तख्ती लगा दी गई। यहाँ बगदाद के सच्चे आदमी ने सच धोकर दुनिया को दिखाया। अब साबिर के पास न बोरी रही, न टूटी चादर, मगर उसके अंदर जो था वही सबसे कीमती दौलत थी। वो जब भी काजी की कुर्सी पर बैठता तो सबसे पहले ये कहता, ये लोगो, धब्बा कपड़े पर हो तो पानी से साफ होता है,
لیکن اگر دل پر لگے تو صرف سچائی ہی اسے دھوتی ہے۔ زندگی کی شام آئی، صابر اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ دریا کنارے بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جب ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ بابا، لوگ کہتے ہیں تم بڑے قاضی تھے، عزت والے، درباری، پھر بھی یہ ٹوٹی چارپائی، یہ سادہ لباس کیوں؟ صابر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، اصل عزت وہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے، اور میں وہی عزت کما چکا ہوں۔ اسی رات صابر خاموشی سے سو گیا۔ نہ شور ہوا، نہ کوئی فریاد، صرف ایک روشنی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ لوگ اگلی صبح آئے تو درخت کے نیچے اس کی چارپائی خالی تھی، لیکن اس کی خوشبو اب بھی بغداد کی فضا میں باقی ہے۔ آج بھی جب کوئی سچ بولتا ہے، جب کوئی نرمی سے کسی کا حق واپس کرتا ہے، جب کوئی چپ چاپ کسی کی مدد کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بغداد کے چالاک دھوبی کی نشانی ہے۔ اگر اب کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورتی